Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, yesterday I have given you practice question 4 which is given at SB 8 in your supplementary book, and that was related to types of polygons which we studied in the previous lecture. Hope all of you have tried that question. So firstly we shall check the solutions to practice question. Here is practice question 4.1 and 4.2. Practice question 4.1. Some real life examples of polygons are given below. Tick the figures which consist of regular polygons. नीचे कुछ examples आपको दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी polygon regular है और कौन सी irregular है. तो बेटा आप देख सकते हो B, C. These are regular polygons because these have same length of side, that is equal length of each side and equal angles. Rest A, D and E, these are irregular polygons. So pause the video and note down the solution. The second question is, what would you call a regular triangle? एक रेगुलर ट्राइंगल को आप क्या बोलोगे? मतलब वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, उस पॉलीगन को आप क्या बोलोगे? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स यू विल ड्रॉ इट्स 4 साइड्स, सो यू विल कॉल इट अ स्क्वायर. Pause the video and note down the solutions of these questions. If these are correct, which are done by you, then very good. If there is need of any rectification, do rectify. Next is practice question 4.3. Can a concave polygon be a regular polygon? क्या एक concave polygon regular हो सकती है? Give reason for your answer. बताओ क्या reason है? In a regular polygon we know all angles are of equal measure, but in a concave polygon at least one angle measures more than 180 degree, because वो क्या होती है? inwards होती है. For example this, ठीक है, एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा है. So we cannot have a regular polygon with all the sides measuring more than 180. लेकिन हम 180 से ज़्यादा तो सारे इसके एंगल्स बना नहीं ना सकते. Therefore, it is not possible to construct a regular concave polygon. Okay, pause the video and note down the answer. So dear students, here we will start our next topic, congruence of lines, angles and triangles. Congruence क्या होती है और lines, angles और triangles की congruence में क्या properties होती हैं, we shall study that. For this you can refer to SB 11 in your supplementary book. It is SB 11, concept time 8, congruence of line segments and angles. We have learned about different type of polygons. हमने different type of polygons के बारे में पढ़ा है. To understand their properties, let us try and recall the concept of congruence. ज़्यादा समझने के लिए हम congruence का topic study करेंगे. When two objects are exact copies of each other, they are said to be congruent. जब दो चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी होती हैं, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, 2 सिक्के ले सकते हो 1 रुपये के. अगर एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर आप प्लेस कर दोगे तो आपको नीचे वाला सिक्का दिखना बंद हो जाएगा, बिकॉज दैट आर ऑफ एग्जैक्ट शेप, सेम शेप एंड सेम साइज, सो दैट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंस का सिंबल जो है वो बेटा ये है, हम ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू डाल के उसके ऊपर एस ऐसे लिखना है. ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. ये चीज़ें माइन्यूट होती हैं, लेकिन इसको अपने माइंड में रखना है, आपने ऐसे ही ऐसे स्टार्ट करना है. राइट, सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. लाइन सेगमेंट्स में कॉन्ग्रुएंस की क्या प्रॉपर्टी है? लाइन सेगमेंट्स दैट आर इक्वल इन लेंथ आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. जो दो लाइन सेगमेंट्स बिल्कुल सेम लेंथ की होती हैं, उन लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स है. नीचे आप देख सकते हो, द लेग्स ऑफ अ स्टूल आर कॉन्ग्रुएंट. एक लेग की लेंथ है, फर्ज करो 3 मीटर्स, 3 फीट कह सकते हो आप, दूसरी की भी है 3 फीट. ओके, तो दीज 2 लाइन सेगमेंट्स आर
congruent, that is written here AB is congruent to CD because both are of 3 feet. Okay, moving to the next concept. What about angles? Angles that are equal in measure are said to be congruent. हम दो एंगल्स को इक्वल कब कहेंगे? हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं? जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल दिस एंगल की डायमेंशन क्या होती है? उसका मेजरमेंट. हम एंगल को कैसे कह सकते हैं कि ये एक एंगल है? हम उसके लिए उसकी मेजरमेंट को मेजर करेंगे, कितने डिग्रीज का एंगल है वो, उसकी डिग्रीज को मेजर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. लेट मी जूम द पिक्चर. हियर you can see ABC angle is given to you and PQR angle is given to you as both are corresponding angles. दोनों corresponding angles हैं, बिल्कुल same to same, exact measure, exact degrees हैं. So we shall write it as this: ABC is congruent to PQR. Now how does the congruence behave in triangles? Triangles में congruence का behavior कैसा रहेगा? For this you can refer SB 12 from your supplementary book, concept time 9, congruence of triangles. Two triangles are congruent if they are identical copies of each other. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होती है जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होती हैं. इफ़ वन ट्राइंगल इज प्लेस्ड ओवर द अदर इट शुड कवर द अदर ट्राइंगल एग्जैक्टली. अगर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख देते हैं तो वो उसे कवर करनी चाहिए. लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन फ़र्ज़ करो आपने इस ट्राइंगल को रोटेट कर दिया, ठीक है, यू हैव रोटेटेड दिस ट्राइंगल, तो ये ऐसे बन गई. तो इस केस में अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करूँगी, दीज आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, बिकॉज यू विल नॉट चेक द बिहेवियर ऑफ पोजीशन. आपने पोजीशन का बिहेवियर चेक नहीं करना, आप उसको फिर से रोटेट करके एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके देख सकते हो वेदर दे हैव सेम शेप और सेम साइज और नॉट. Now look at the figure given on the screen. Is triangle ABC congruent to triangle XYZ? Why? क्या triangle ABC triangle XYZ के congruent है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो B डाउनवर्ड्स है, Y अपवर्ड्स है, तो आपने पोजीशन को इंक्लूड नहीं करना, पोजीशन को माइंड में नहीं रखना. पोजीशन कैन बी एनी. Here it says yes, triangle ABC is congruent to triangle XYZ because when we keep triangle ABC over triangle XYZ it covers XYZ completely. हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर, एक ब्रेड लोफ को दूसरे ब्रेड लोफ के ऊपर रख के देख लिया. अगर वो एक दूसरे को completely कवर कर रहे हैं then both are congruent. अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बेटा हो जाती हैं तो ट्राइंगल्स में उनकी साइड्स और उनके एंगल्स में क्या रिलेशन रहता है ये हम स्टडी करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे साइड्स में क्या रिलेशन रहता है. इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द साइड दैट मैच ईच अदर आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. एक ट्राइंगल में जो
दो साइड्स एक दूसरे को मैच कर जाती हैं, दैट आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी एंड एक्स वाई गिवन टू यू, और आप यहाँ पे ये सिंबल देख सकते हो, ठीक है, छोटी सी लाइन का सिंबल दिया हुआ है, दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। इट शोज ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई, मतलब हमने ए बी को एक्स वाई से रिलेट करना है। ओके, नेक्स्ट साइड कौन सी है आपके पास? बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई जेड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ए सी इज, और सी ए भी बोल सकते हैं, इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स जेड या फिर जेड एक्स। मतलब जब आप सेम कलर वाली साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, दे विल cover each other, you will find them a single lobe. So this is a correspondence relation of sides. Now what about angles? In two congruent triangles, angles that match each other are called corresponding angles. For example, blue color वाला एंगल आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल X, मतलब अगर एंगल A 40 डिग्री का होगा तो एंगल X भी 40 डिग्री का होगा। एंगल B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल Y, अगर एंगल B आपके पास, आप कह सकते हो कि 80 डिग्री का होगा, ठीक है, तो Y भी 80 डिग्री का होगा, राइट। एंड एंगल C इज कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल Z, देन इट वुड बी 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस? इसको बेटा आप इसके नेम से ही डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो? A के कॉरस्पॉन्डिंग X होगा, B के कॉरस्पॉन्डिंग Y होगा और C के कॉरस्पॉन्डिंग Z होगा। ओके, नेम से ही आप डिफाइन कर सकते हो, जिस फॉर्म में नेम लिखा है उस फॉर्म में ही वो लेटर्स एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करेंगे। Dear students, now look at the chart given to you on the screen, congruence of triangles. तो इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज होते हैं जिनके थ्रू हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी हैव SSS, साइड साइड साइड, ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल के इक्वल हो जाती है, किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी के इक्वल हो जाती हैं, देन दैट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सेकंड है ASA, एंगल साइड एंगल। जब किसी ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड, फॉर एग्जांपल दीज टू एंगल्स एंड दिस साइड, इंक्लूडेड साइड ही आपने हमेशा लेनी है, एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल, तो टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट। दो साइड्स, जैसे ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, और उनके बीच वाला एंगल, बेटा साइड्स के बीच जो एंगल बन रहा है, इंक्लूडेड एंगल हम कंसिडर करेंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। फॉर दिस द ट्राइंगल्स शुड बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। सो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल के सामने वाली साइड और कोई एक साइड, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एंगल मार्क किया हुआ है, लेकिन आप क्या मार्क करोगे? साइड मार्क करोगे। ओके, एनी साइड यू कैन टेक, लाइक दिस साइड इज गिवन टू यू, जस्ट लेट मी टेल यू, दिस साइड इज गिवन टू यू। ओके, ब्लू वाला एंगल दे कंसिडर करोगे। सो दीज आर 4 congruence rules. You can also draw this small table in your notebook so that you can remind well that which congruence criteria are valid. कौन से होते हैं? SSS, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, SAS, एंगल साइड एंगल, ASA एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। और इनकी एब्रीवेशन बेटा जो है, शॉर्ट फॉर्म जो है, वो हमेशा आपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। फॉर दिस यू कैन रेफर SB12। SB12 पे भी आपको ये चार्ट दिया हुआ है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में बनाओगे। बेटी एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना, दैट यू शुड यूज़ दीज वैलिड क्राइटेरियाज ओनली। कुछ बच्चे अपनी तरफ से AAA
भी लिख देते हैं, साइड साइड एंगल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरियाज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट आर इनवैलिड, सो डू नॉट यूज दीज क्राइटेरियाज। लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन ओपन SB 13 question number 6.4. In the given figure, two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. Complete the sentences given below. आपके पास नीचे ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ठीक है, और आपको फिलिप्स दी हुई हैं। आपने ट्राइंगल का नेम पुट अप करना है और क्राइटेरिया बताना है। फर्स्ट में आप देख सकते हो बेटा, ए साइड इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी एंड सी साइड इज कॉमन। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा है? एस एस एस। नाउ यू वांट टू नेम द साइड्स। पी एस क्यू आपको गिवन है। अब आप देखोगे कि कैसे जा रहा है, पी से एस की तरफ गया और एस से क्यू की तरफ गया। तो आप सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को फॉलो करोगे, पी से आर पे जाओगे और आर से क्यू पे। सो यू विल राइट हेयर ट्राइंगल पी आर क्यू and the criteria would be SSS in the first part. Now in the second part you can see AC is marked equal as RP, AB is marked equal as QP and angle B is marked equal as angle Q. So RHS right angle, ठीक है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और उसके साथ कोई भी जो एक बच गई है साइड, उनमें से एक साइड ली हुई है। ओके, नाउ द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC गिवन टू यू, A से B और B से C। सो व्हाट विल यू डू? A से B, B से C, मतलब B पे आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो B सेंटर में है तो आपको Q भी सेंटर में रखना होगा। Okay, now which is the longer side as AB, that is PQ. So P will come first and the name will be PQR. It is given here. So note down the solution of this question and complete this question in your notebook. I hope you have understood today's topic. Your homework for today is you have to try practice question 6 part 6.1, 6.2, 6.3 in your rough notebook. And you can check the solutions in the following video. That's all for today. Happy learning.